हैदराबाद में मूसलाधार बारिश की पेशगोई की गई है। गुज़िश्ता 2 दिनों से शहर में शदीद बारिश हो रही है, जिससे शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना है। रात भर मुसलसल बारिश के बाइस सुबह से ही हालात मुतासिर हो चुके हैं। दफातर और तालीमी इदारों को जाने वाले बच्चों और अफराद को शदीद दुश्वारी पेश आ रही है। मुसलसल बारिश के बाइस मामूलात जिंदगी मफलूज हो गए हैं। सुबह से ही आसमान पर घने बादल छाए हुए हैं और मौसम सर्द हो गया है। कई सड़कों पर पानी बह रहा है, जिससे ट्रैफिक में खलल पड़ रहा है। बारिश की वजह से मुख्तलिफ इलाकों में कीचड़ और फिसलन पैदा हो गई है। निशेबी इलाकों में रहने वाले लोग ज्यादा मुश्किलात का सामना कर रहे हैं। शहर में बारिश के बाइस रोजमर्रा के काम अंजाम देना इंतहाई मुश्किल हो गया है। ने बंजारा हिल्स हैदराबाद में 300 बिस्तरों पर मुश्तमिल नया मल्टी स्पेशलिटी अस्पताल का इफ्तिताह किया। तेलंगाना के वजीर आला रेवंत रेड्डी ने इस तकरीब में शिरकत की और AIG की सेहत के शोबे में खिदमात की तारीफ की। इस अस्पताल में जदीद तशखीसी और जर्राही सहूलियात दस्तयाब हैं। मुख्तलिफ शोबाजात में सेंटर्स ऑफ एक्सलेंस कायम किए गए हैं। एक खुसूसी मरकज़ बराए मसनूई ज़हानत व इख्तिरा भी बनाया गया है। AIG का मकसद इलाज को मज़ीद काबिल रसाई बनाना और AI टेक्नोलॉजी से इलाज के नताइज को बेहतर बनाना है। ये नया कदम तेलंगाना की तिब्बी सहूलियात को मज़ीद मजबूत बनाएगा। सेहत के शोबे में कौमी सतह पर तरक्की की कोशिशों को भी तक़वियत देगा। ये अस्पताल इलाज, तहक़ीक़ और जिद्दत का इम्तिज़ाज है। AIG ने एक जदीद और मरीज़ दोस्त इदारा फराहम किया है, जो बैन अल-अक़वामी मेयार पर पूरा उतरता है। పేదలకు ఉచితంగా వీలైనంత మేరకు వైద్యాన్ని అందించాలి, పేదలకు నాణ్యమైన విద్యను అందించాలనే ఒక ప్రాధాన్యత క్రమాలు పెట్టుకొని మేము ముందుకు వెళ్తున్నాం. ఇందులో ఏమాత్రం అవకాశం ఉన్నా మీ సమయాన్ని మీరు కేటాయించుకుంటూనే ప్రభుత్వం చేపడుతున్న కార్యక్రమాలకు కూడా మీ వంతు సహకారం ఉండాలి. నేను ఈ వేదిక మీద నుంచి రాష్ట్రంలో చదువుకున్న డాక్టర్లందరికీ నేను ఒక విజ్ఞప్తి చేస్తున్నాను. సంవత్సరంలో ఒక్క నెలైనా ప్రభుత్వ ఆసుపత్రులలో పనిచేయండి. 11 నెలలు మీరు మీకు నచ్చిన ప్లేస్లో మీకు నచ్చిన జీతం తీసుకొని మీకు నచ్చిన లైఫ్ను మీరు లీడ్ చేయండి. సోషల్ రెస్పాన్సిబిలిటీ కింద సంవత్సరంలో ఒక్క నెల ఎక్కడైనా మీకు ఏదో ఒక హాస్పిటల్లో ఒక నెల రోజులు డాక్టర్లు సమయం కేటాయించి పేదలకు వైద్యం చేస్తే డెఫినెట్గా యూ విల్ గెట్ దట్ ప్లెజర్. మనం ఒక వృత్తిలో మేము పబ్లిక్ లైఫ్లో ఉన్నప్పుడు చాలా రకాల పనులు చేస్తుంటాం, కానీ జాబ్ సాటిస్ఫాక్షన్ కోసం, పర్సనల్ సాటిస్ఫాక్షన్ కోసం కొన్ని సెలెక్టెడ్గా కొన్ని పనులను ప్రత్యేకంగా సమయం కేటాయించి పని చేస్తూ ఉంటాం ప్రజాప్రతినిధులుగా. అదేవిధంగా నేను డాక్టర్లకు విజ్ఞప్తి చేస్తున్నా, సంవత్సరంలో ఒక నెల మీ ఇష్టం ఏ హాస్పిటల్లో ఏ నెలలో పనిచేస్తారో మీరు గవర్నమెంట్కి ఇండికేట్ చేయండి. నేను అధికారులకు చెప్పిన, నాట్ ఓన్లీ ఇన్ హైదరాబాద్, ఇన్ తెలంగాణ, అమెరికాలో చాలామంది డాక్టర్లు ఉన్నారు. వాళ్ళ పేరెంట్స్ని చూడడానికో ఫ్యామిలీని కలవడానికో స్పెషలిస్టులు ఇండియాకు వస్తున్నారు. దే వాంటెడ్ టు సర్వ్ సంథింగ్, బట్ దే డోంట్ హ్యావ్ ఎనీ ప్లాట్ఫామ్ వేర్ టు గో, హౌ టు గో, వేర్ టు సర్వ్, when to serve. They don't have any information. That is why I have told my people to create a platform. Ask them to put some information. వాళ్ళు ఎప్పుడు మన దగ్గరకు వస్తుండ్రో, ఏ సమయం ఇవ్వగలుగుతారో, కనీసం ఒక 1 వీక్ ఇచ్చిందంటే ఆ 1 వీక్లో నిమ్స్లోనో ఉస్మానియాలోనో ఎక్కడైనా స్పెషలిస్టులు ఆ పేషెంట్లను అడ్రస్ చేస్తే వాళ్ళు అట్లీస్ట్ ఫిజికల్గా ఒకసారి చూస్తే తర్వాత ఆన్లైన్ అయినా వాళ్ళు అడ్వైజ్ చేయడానికి అవకాశం ఉంటుంది. సో ఈరోజు ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ నుంచి సాంకేతిక రంగంలో వన్ ఆఫ్ ద బెస్ట్ సిటీ జీసీసీలో కానీ ఐటీ కంపెనీలో కానీ ఈరోజు ప్రపంచంలో హైదరాబాదు వన్ ఆఫ్ ద డెస్టినేషన్. సో మనం ఈ సాంకేతిక నైపుణ్యాన్ని ఉపయోగించుకొని హెల్త్ पाशमील इरम हादसा के मकाम पर कांग्रेस इंचार्ज मीनाक्षी नटराजन ने वुज़रा के साथ दौरा करते हुए जायजा लिया। उन्होंने जाए हादसा पर वुज़रा और आला हुक्काम के साथ तफसीली मुशावरत और जायजा इजलास मुनक़िद किया। मीनाक्षी नटराजन के इस तरह के सरकारी जायज़ों पर मुख्तलिफ हलकों से एतराज़ात सामने आए हैं। तनकीद करने वालों का कहना है कि वो सिर्फ कांग्रेस पार्टी की इंचार्ज है, हुकूमत की नुमाइंदा नहीं। इससे पहले भी मीनाक्षी नटराजन ने सेक्रेटरीट में सरकारी नौयत के जायजे किए थे। हुकूमती इख्तियारात के बगैर इस तरह की मुदाखलत पर कई सियासी रहनुमा सवाल उठा रहे हैं। नाकदीन का कहना है कि पार्टी ओहदा रखने का मतलब ये नहीं कि वो सरकारी कामों में दखल दे। मीनाक्षी नटराजन का रवैया हुकूमत और पार्टी के दरमियान हुदूद को धुंधला कर रहा है। बाज़ हलकों का मानना है कि ये अक़दाम सरकारी प्रोटोकॉल की खिलाफ वर्जी के मुतरादिफ है। ये मामला सियासी और इंतज़ामी सतह पर बहस और मुबाहिसे का मरकज़ बनता जा रहा है।
అందుకని మాకు వీలైనంత వరకు పైన ఇద్దరు ఎక్కడి నుంచి అయితే వేస్తున్నాయి అక్కడి నుంచి అందరం ఏమో అవకాశం ఇచ్చేకున్నా ఇప్పటి వరకు అయితే అదో సైడ్ ఎక్స్పెక్ట్ చేసినాం సార్, అది ఆల్మోస్ట్ క్లియర్ చేసినారు. ఇక అంత సబ్స్క్రిప్షన్ ఇప్పటి వరకు అయితే నిన్నటి వరకు ఇక్కడ ఈ పార్ట్లో ఎక్కువ ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తున్నాను, అది కూడా క్లియర్ అయిపోయింది సార్. ఇప్పుడు అంత పైన కూడా ఏమైనా బ్యాలెన్స్ ఇంకా పైన కూడా ఏమైనా ఉన్నాయని అది కూడా చూస్తుంది పైన కూడా. पाशमीलरम सगची फैक्ट्री के सामने मजदूरों के रिश्तेदारों ने एहतजाज शुरू किया है। 3 दिन कबल होने वाले धमाके के बाद भी अभी तक उनके अजीजों का कुछ पता नहीं चल पाया है। मुतासिरा खानदानों का कहना है कि उन्हें फैक्ट्री के करीब आने भी नहीं दिया जा रहा है। हुक्काम की जानिब से मुतजाद और गैर वाज़े जवाबात दिए जा रहे हैं। रिश्तेदारों का कहना है कि वो 3 दिन से फैक्ट्री के बाहर अपने प्यारों का इंतजार कर रहे हैं। धमाके के बाद मजदूरों के अंजाम के बारे में कोई बाज़ाब्ता मालूमात फराहम नहीं की जा रही हैं। खानदान वालों का मुतालबा है कि उनके अजीज़ों को फौरी तौर पर उनके हवाले किया जाए। मुतासरीन ने इल्ज़ाम लगाया कि फैक्ट्री इंतज़ामिया और हुक्काम लापरवाही का मुजाहरा कर रहे हैं। गुस्से और बेबसी में मुब्तला ये खानदान इंसाफ के लिए एहतजाज कर रहे हैं। उन्होंने हुक्काम से मुतालबा किया है कि सच्चाई सामने लाई जाए और जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। మనమే గడపడతో దూరం పని చేసి లేకపోతే ఏం చేస్తామమ్మా? అరే 24 గంటలు అయిపోయింది. जेसीपी नहीं था अपन को दिया चलो नहीं अपन को दे ఎక్కడ కూడా లేదు హాస్పిటల్ కూడా లేదు ఇంత వానలు ఇంత ఎండలు పిల్లలు చూసుకుని వస్తున్నాం ఎన్ని రోజు ఆగలేదు ఇప్పుడు జేసీపీలో 5 నిమిషాల్లో చేస్తాం లేదంటే గడపడతాం ఓకే మన సేవలమని తీసుకుంటాము మరి ఏం చేస్తాం చెప్పు
ఇప్పుడు మళ్ళీ ఆపేషన్ చూడు, ఇప్పుడు చెప్తానే ఉన్నా మళ్ళీ ఆపేషన్. రెండు ఫ్లాష్ కానీ అయిపోయిన తర్వాత ఫోటో నీరు చూపెట్టేసి ఫ్యామిలీ ఉన్నాము, కంపెనీ దగ్గర కూర్చున్నాము, మనకి ఎవరు కేర్ చేస్తున్నారు, లోపల ఎవరు రానిస్తలేరు. कांग्रेस लीडर फिरोज खान पर रियासती ख्वातीन कमीशन ने संजीदगी से नोटिस लिया है। ख्वातीन कमीशन ने फिरोज खान के खिलाफ अज खुद सुमोटो मुकदमा दर्ज करते हुए तहकीकात का आगाज किया है। गुज़िश्ता माह 21 तारीख को गांधी भवन में मुनक़दा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में फिरोज खान ने ख्वातीन के खिलाफ तौहीन आमेज रिमार्क्स दिए थे। कमीशन का कहना है कि उनके बयानात ख्वातीन की तौहीन और बदनामी का बाइस बने हैं। फिरोज खान के रिमार्क्स ख्वातीन के वक़ार को ठेस पहुंचाने वाले करार दिए गए हैं। ख्वातीन कमीशन ने उन बयानात को मुआशरती तौर पर नुकसानदेह करार दिया है। फिरोज खान को इस माह की 4 तारीख को कमीशन के सामने हाजिर होने के लिए नोटिस जारी किया गया है। कमीशन ने कहा कि इस तरह के बयानात को किसी सूरत बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ख्वातीन के एहतराम की खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। ये मामला सियासी और समाजी हलकों में भी जेर बहस आ रहा है। ఎవరైనా పోటీ చేయవచ్చు, రైట్? కేటీఆర్ కూడా అక్కడ రిజైన్ ఇస్తాడు. సిరిసిల్ల కేటీఆర్ పోటీ చేయవచ్చు, కేటీఆర్ పెళ్ళం పోటీ చేయవచ్చు, కేటీఆర్ పెళ్ళం పోటీ చేయవచ్చు, రైట్? అందరికీ ఆ అర్హత ఉన్నది మన డెమోక్రసీలో. సో ఆల్ ఆర్ వెల్కమ్. ఒకటే చెప్తా నేను, బెస్ట్ మ్యాన్ ఎదుర్కొంటారా కవిత గారు? బెస్ట్ మ్యాన్ కవిత పీక్తది. కవిత ఎవరమ్మా? సోనియా గాంధీ లేకుంటే అట్లీస్ట్ ప్రియాంక గాంధీ? ఎవర్ కవిత? ఆ బీఆర్ఎస్ కవితకి చెప్పేస్తున్నాం ఈ ఛానల్ ముందు. रेवंत रेड्डी और आतम कुमार रेड्डी दोनों ने चंद्राबाबू से मुलाकात के बाद ही बनिकचरला प्रोजेक्ट के कामों का आगाज हुआ। 6 जुलाई 2024 को प्रगति भवन तेलंगाना में रेवंत रेड्डी ने चंद्राबाबू से मुलाकात करके तेलंगाना के आबी हुकूक पर आमौद का फैसला लिख दिया। इल्जाम 13 सितंबर 2024 को आतम कुमार रेड्डी अपनी अहलिया के हमरा विजयवाड़ा जाकर चंद्राबाबू से मुलाकात की और वहां मजे से बजियां खाकर वापस आए। नवंबर में बनिकचरला प्रोजेक्ट से मुताल्लिक चंद्राबाबू नायडू ने मरकजी वजीर निर्मला सीतारामन को खत लिखा। हरीश राव ने इल्जाम लगाया कि तेलंगाना के मुफादात के खिलाफ ये मुलाकातें और फैसले हुए। उन मुलाकातों के बाद आंध्रा को ज्यादा फायदा, तेलंगाना को नुकसान होने का खदशा जाहिर किया गया। कांग्रेस क़यादत पर इल्जाम है कि उन्होंने आंध्रा हुकूमत के साथ मिली भगत की। अवामी हलकों में भी उन मुलाकातों पर सवालात और तनकीदें सामने आ रही हैं। हरीश राव ने कहा कि तेलंगाना के आबी कुर्बान किए जा रहे हैं। ये मामला अब सियासी तौर पर गर्मा गर्म बहस का मौजू बन चुका है। జూలై 6, 2024 నాడు ప్రజాభవన్లో రేవంత్ రెడ్డి చంద్రబాబు నాయుడుల మీటింగ్ జరిగింది. ఆ తర్వాతనే ప్రాజెక్టు పనులు స్టార్ట్ అయినాయి. రేవంత్ రెడ్డి గారు అదే రోజు ప్రజాభవన్ వేదికగా తెలంగాణ నీటి హక్కులకు మరణ శాసనం రాసిండు రేవంత్ రెడ్డి. ఆ తర్వాత ఏమైంది? జూలై 6, 2024 రేవంత్ చంద్రబాబు కలిసిండ్రు. సెప్టెంబర్ 13, 2024 ఉత్తమ్ కుమార్ రెడ్డి గారు సతీ సమేతంగా బెజవాడకు పోయి బజ్జీలు తినొచ్చిండు. అక్కడ సైలెంట్ అయిపోయింది. ఇక బెజవాడ బజ్జీలు తిని బెజవాడకు పోయి చంద్రబాబు నాయుడు సతీ సమేతంగా కలిసి గోదావరి బనకచెర్లకు ఉత్తమ్ కుమార్ రెడ్డి కూడా పచ్చ జెండా ఊపిండు. ఆనాడు రేవంత్ రెడ్డి ప్రజాభవన్ వేదికగా, బెజవాడ వేదికగా ఉత్తమ్ కుమార్ రెడ్డి ఈ ఇద్దరు కలిసి ఈ గోదావరి బనకచెర్లకు జెండా ఊపిండ్రు. జూలై 6, 2024 ఏమో రేవంత్ రెడ్డి, సెప్టెంబర్ 13, 2024 ఏమో ఉత్తమ్ కుమార్ రెడ్డి. కరెక్ట్గా మీరు డేట్లు చూస్తే దాని తర్వాత ఇదే క్రమంలో నవంబర్ 15, 2024 నాడు ఆంధ్రప్రదేశ్ ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు నాయుడు గారు ఇది నిర్మలా సీతారామన్ గారికి లెటర్ రాసిండ్రు. మీరు కలవంగానే లైన్ చూడండి.
ఫస్ట్ రేవంత్ కలిసిండు, సెకండ్ ఈయన పోయి రేవంత్ రెడ్డి గారు దూలంగానే ఉత్తమ్ కుమార్ రెడ్డి సతీ సమేతంగా పోయొచ్చిండు బెజవాడకు. ఈయన సెప్టెంబర్లో పోగానే నవంబర్ నెలలో మన చంద్రబాబు నాయుడు గారు నిర్మలా సీతారామన్కు గోదావరి బనకచెర్ల ప్రాజెక్టుకు డబ్బులు ఇవ్వండి అని చెప్పి రాశాడు. దీని తర్వాత మళ్ళీ డిసెంబర్ నెలలో 80,000 కోట్లు ఇవ్వండి మాకు అని చంద్రబాబు నాయుడు గారు డిసెంబర్లో నిర్మలా సీతారామన్ గారికి ఉత్తరం రాశారు. నవంబర్లోటి, డిసెంబర్లోటి. అయితే ఇంత జరిగిన अल इंडिया मजलिस इत्तेहाद अल मुस्लिमीन के सदर असदुद्दीन ओवैसी ने बुध के रोज इलेक्शन कमीशन से वोटर नजरसानी की नई पॉलिसी पर वजाहत तलब की है। उन्होंने मुतालबा किया कि इस मामले पर तमाम जमातों की मीटिंग बुलाई जाए। ओवैसी ने खदशा जाहिर किया कि ये नई पॉलिसी आने वाले बिहार इंतखाबात पर असरअंदाज हो सकती है। उनका कहना था कि वोटरों के हुकूक पर किसी भी किस्म का समझौता नाकाबिले कबूल होगा। उन्होंने इलेक्शन कमीशन से शफाफियत और तफसीली वजाहत फराहम करने का मुतालबा किया। ओवैसी ने कहा कि नई पॉलिसी से वोटर लिस्ट में मुमकिना तब्दीलियां खतरनाक साबित हो सकती हैं। उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि इस पॉलिसी से मखसूस तबकात मुतासिर हो सकते हैं। ओवैसी ने जोर दिया कि जमहूरी अमल को शफाफ और मुनसिफाना बनाया जाए। उन्होंने कहा कि अगर ज़रूरी हुआ तो इस पॉलिसी के खिलाफ सियासी सतह पर जिदोजहद की जाएगी। इलेक्शन कमीशन ने ताहाल इस मुतालबे पर कोई बाज़ाब्ता रद्द अमल जाहिर नहीं किया है। अक्टूबर या नवंबर में स्टेट असेंबली इलेक्शन होंगे विधानसभा के, तो समरी इंटेंसिव रिवीजन का ईसीआई ने अनाउंस किया। हम इलेक्शन कमीशन को ये लेटर लिखे हैं जिसमें हम उनसे पूछ रहे हैं कि इतनी बड़ी एक्सरसाइज आप कर रहे हैं तो आप ऑल पार्टी मीटिंग क्यों नहीं बुलाए? क्योंकि इलेक्शन कमीशन ये बोल रहा है कि बिहार का भी होगा, तमिलनाडु का भी होगा, बंगाल का भी होगा, और इलेक्शन कमीशन ऑल पार्टी मीटिंग बुला सकता। अभी तो कोई इलेक्शन नहीं है, आप बोलते इलेक्शन हो तो सुपीरियर बॉडी आर्टिकल 329 के तहत कोई इलेक्शन नहीं है। अब तो हम सब एक पेज पर है। तीसरी अहम बात यह है कि आप लोग प्लीज़ समझिए कि इलेक्शन कमीशन ने ये कहा कि पार्लियामेंट 2024 इलेक्शंस में बिहार में 7,72,59,579 वोटर्स हैं। अब इलेक्शन कमीशन ये बोल रहा है कि 2003 के वोटर लिस्ट की बुनियाद पर 4.96 वोटर्स को ऐसे हम इंक्लूड करेंगे। हाँ, तो बचे कितने? नियरली 2,75,00,000 नियरली। हमारा इलेक्शन कमीशन से सवाल ये है कि आप तो 2 क्लासेस क्रिएट कर दिए वोटर्स के। कैसे? जो 2024 में वोट डाले, आप ये बोल रहे कि अब वोट नहीं डाल सकते अनलेस एंड अनटिल कोई रीजनेबल बेसिस तो होना चाहिए ना। आप जो कर रहे हैं उसका कोई रीजनेबल बेसिस नहीं है। तो ये खुद आर्टिकल 14 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन का जो फंडामेंटल राइट है उसका ग्रेव वायलेशन है। जो लोग 2024 में वोट डाले उनको आप बोल रहे कि अब आप 2025 के इलेक्शन में वोट नहीं डाल सकते जब तक कि आप अपना बर्थ सर्टिफिकेट, अपने माँ का, अपने पिता का बर्थ सर्टिफिकेट नहीं बताएंगे। तो ये खुद ये आप एक वो कर दिए। अच्छा, मिसाल के तौर पर अगर कोई बिहार में कोई पार्लियामेंट इलेक्शन में फ़र्ज़ करिए कोई 20,000 वोट से कोई सीट हार गया, कोई पार्टी का कैंडिडेट, और आप ये बोलेंगे समरी इंटेंसिव रिवीजन में कि यहाँ पर 20,000 नाम गलत थे, इलीगल माइग्रेंट्स थे, शिफ्ट हो गए, तो फिर 24 का इलेक्शन चैलेंज करना तो मेरे को, फिर आप मेरे को चैलेंज कर दो 24 का इलेक्शन। ये क्या कर रहे हैं आप? और तीसरी छठी बात यह है कि बिहार में जो सिविल रजिस्ट्रेशन सिस्टम है, सिविल रजिस्ट्रेशन सिस्टम ये बोलता है कि 2000 में बिहार में रजिस्ट्रेशन ऑफ बर्थ्स का। हैदराबाद पीटर इंडिया ने हैदराबाद और सिकंदराबाद में होने वाले बोनालाओ और मुहर्रम जुलूसों के लिए मैकेनिकल हाथी फराहम करने की पेशकश की है। ये पेशकश अवामी तहफ़्फ़ुज़ और जानवरों की फलाह के पेश नज़र की गई है। पीटर ने मजहबी और सरकारी हुक्काम को खुतूत लिखे हैं ताकि जिंदा हाथियों के इस्तेमाल से ग्रेज किया जा सके। उन्होंने इस बात की निशानदेही की कि पिछले कई वाक़यात में कैद हाथियों ने तशद्दुद का मुजाहरा किया जिसके नतीजे में जानी नुकसान हुआ। पीटर ने उन वाक़यात में होने वाली हलाकतों और ज़ख्मियों का हवाला दिया है। इदारे ने मैकेनिकल हाथियों को महफूज और जुल्म से पाक मुतबादिल करार दिया है। ये नकल हाथी हरकत भी असली हाथियों जैसी करते हैं। हिंदुस्तान के कई मंदिरों में ये पहले से इस्तेमाल हो रहे हैं।
पीटर ने जंगली हयात के हुक्काम से अपील की है कि मजहबी तकरीबात के लिए जिंदा हाथियों की मुंतकली के इजाज़तनामे जारी न किए जाएं। ये इक़दाम जानवरों की फलाह और इंसानी सलामती दोनों के लिए अहम समझा जा रहा है। मूनसून के पेश नज़र हैदराबाद डिजास्टर रिस्पांस एंड एसिड प्रोटेक्शन एजेंसी ने 4100 से ज़ायद एहलकार तैनात किए हैं। इस इक़दाम का मकसद बारिशों के दौरान शहरी जिंदगी को मुतासिर होने से बचाना है। 150 मूनसून एमरजेंसी टीमें मैट्स मुख्तलिफ इलाकों में सरगर्म रहेंगी। 734 अमला बरसाती पानी की निकासी और पानी जमा होने से रोकने के लिए मुकर्रर किया गया है। 51 डिजास्टर रिस्पांस फोर्स DRF टीमें हंगामी हालात के लिए तैयार रहेंगी। ट्रैफिक नज़्म व नस्क और कचरा हटाने के लिए इजाफी वसाइल फराहम किए गए हैं। तमाम टीमें 24 घंटे काम करेंगी ताकि फौरी इमदाद फराहम की जा सके। गिरने वाले दरख्तों, पानी जमा होने आ दीगर हंगामी हालात से निपटने के लिए तेजी से इक़दामात किए जाएंगे। का मकसद बारिशों के दौरान शहरियों को ज़्यादा से ज़्यादा सहूलत फराहम करना है। ये मनसूबा मूनसून के मौसम में शहर को महफूज और फाल रखने की एक अहम कोशिश है। बोराबंडा के 26 साला ताजिर सैयद शाहिद के कत्ल के सिलसिले में कोकटपली पुलिस ने 3 अफराद को गिरफ्तार किया है। मुल्जिमान की शनाख्त छोटियहुंक उर्फ मीना मोहम्मद साजिद और मोहम्मद समीर खान उर्फ डागुड समीर के तौर पर की गई है। कत्ल का वाकया 29 जून 2025 को देव इस्ताना होम्स के पीछे एक खिली जगह पर एक सालगिरह की तकरीब के दौरान पेश आया। पुलिस के मुताबिक ये हमला बाकायदा मनसूबा बंदी के तहत किया गया था। मुल्जिम और मकतूल के दरमियान पुरानी दुश्मनी ही इस वारदात की वजह बनी। पुलिस ने जाए वारदात से खून आलूद अशिया और मोबाइल फोन्स बरामद किए हैं। तहकीकात के बाद तीनों मुल्जिमान को अदालत में पेश किया गया। अदालत ने उन्हें अदालती तहवील में भेज दिया है। पुलिस का कहना है कि मजीद शवाहिद इकट्ठा किए जा रहे हैं। ये वाकया इलाके में खौफ व हरास का बाइस बना है। तेलंगाना इंसदाद रिश्वत सतानी ब्यूरो ACB ने रंगारेड्डी जिला के तालुका कुंडापली के मंडल रेवेन्यू ऑफिसर B नागरचना और उसके अटेंडेंट यादगिरी को रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किया है। उन पर इल्जाम है कि उन्होंने 10,000 रुपये रिश्वत जरी अराजी 22 घंटे की रजिस्ट्री के लिए तलब की थी। ये जमीन शिकायत कुनिंदा की वालिदा के नाम पर थी, जिसे शिकायत कुनिंदा और उसके रिश्तेदारों के नाम पर मुंतकिल कराने के लिए रिश्वत मांगी गई। रिश्वत की रकम यादगिरी से बरामद की गई। दोनों एहलकारों के हाथों पर केमिकल टेस्ट में रिश्वत के निशानात पाए गए। नागरचना और यादगिरी को अदालती तहवील में भेज दिया गया है। तहकीकात का अमल जारी है। ACB ने अवाम से अपील की है कि वो सरकारी अफसरान की करप्शन की इत्तला दें। शिकायत 1060 पर कॉल 9440446106 पर व्हाट्सएप सोशल मीडिया फेसबुक तेलंगाना ACB Twitter/X के जरिए दी जा सकती है। हुक्काम ने यकीन दिलाया है कि शिकायत कुनिंदगान की शनाख्त सगराज में रखी जाएगी। कर्नाटक के हसन जिला में सिर्फ 40 दिनों में दिल का दौरा पड़ने से 23 नौजवानों की मौत वाक़ई हुई है। तमाम हलाक शुदगान की उम्रें 19 से 25 साल के दरमियान है, जिस पर अवाम में तशवीश की लहर दौड़ गई। उन गैरमामूली अमवात पर रियासती वज़ीर आला सदारामिया ने सवाल उठाया कि आया उन अमवात का कोई ताल्लुक कोविड वैक्सीन से तो नहीं। वज़ीर आला ने फौरी कार्रवाई करते हुए मामले की तहकीकात के लिए एक माहिरीन की टीम तश्कील दी है। डॉक्टर रविंद्रनाथ की क़ियादत में माहिर डॉक्टरों का ये पैनल अमवात की असल वजूहात का पता लगाएगा। वज़ीर आला सदारामिया ने टीम को 10 दिनों के अंदर तफसीली रिपोर्ट पेश करने की हिदायत दी है। उन अचानक अमवात ने न सिर्फ मकामी अवाम को बल्कि हुक्काम को भी परेशान कर दिया है। रियासती हुकूमत ने मुकम्मल शफाफ तहकीकात का वदा किया है। अहल इलाका का मुतालबा है कि नौजवानों की अमवात पर संजीदा इक़दामात किए जाएं। तहकीकात के नताइज के बाद ही असल वजह सामने आने की तवक्को है। मुंबई के एक मशहूर स्कूल में 11 जमात के तालिब इल्म को एक खातून टीचर की जानिब से जिनसी हरासानी का निशाना बनाया गया। ये वाक़या 2023 में स्कूल के सालाना प्रोग्राम के दौरान ग्रुप डांस की तैयारी के वक्त शुरू हुआ। खातून टीचर ने तालिब इल्म से दोस्ती बढ़ाते हुए इसे गुमराह किया कि इस किस्म के ताल्लुकात असातिज़ा और तलबा के दरमियान आम होते हैं। बाद अज़ां इसने तालिब इल्म को मुख्तलिफ 5 स्टार होटलों में ले जाकर जिनसी इस्तेहसाल किया। खातून ने तालिब इल्म को शराब भी पिलाई और जब वो ज़हनी दबाव में आया तो इसे दवाएं देकर खामोश करने की कोशिश की। तालिब इल्म के रवैये में तब्दीली महसूस करते हुए वालिदैन ने तहकीक की तो सच्चाई सामने आई। वालिदैन ने सोचा कि बेटे की ग्रेजुएशन के बाद टीचर का कोई ताल्लुक नहीं रहेगा, इसलिए शिकायत नहीं की। लेकिन बोर्ड इम्तिहानात के बाद भी जब वो खातून दोबारा तालिब इल्म से राब्ता करने की कोशिश करने लगी तो वालिदैन ने पुलिस से रुजू किया।
पुलिस ने खातून टीचर को गिरफ्तार करते हुए इसके खिलाफ एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया। वाक़ये की मुकम्मल तहकीकात जारी है और मुतासिरा तालिब इल्म की नफ्सियाती मदद की जा रही है। तिरुमला के श्री वेंकटेश्वरा मंदिर के ऊपर एक बार फिर हवाई जहाज चक्कर लगाने से अकीदतमंदों में नाराजगी पैदा हुई है। आगमा शास्त्र मजहबी उसूलों के मुताबिक मंदिर के ऊपर से किसी भी किस्म की हवाई आमद और रफ्त ममनू है। बावजूद इस पाबंदी के हालिया दिनों में मुसलसल मंदिर के ऊपर से तैयारे गुजर रहे हैं। अकीदतमंदों का कहना है कि ये अमल मंदिर की तकद्दुस और रवायात की तौहीन के मुतरादिफ है। उन वाक़यात पर बार बार एतराज़ात के बावजूद इंतज़ामिया की जानिब से मुअस्सिर कार्रवाई नहीं की जा रही है। अकीदतमंद मुतालबा कर रहे हैं कि मंदिर के ऊपर फ़िज़ाई रास्ते को बंद कर दिया जाए। तिरुमला जैसा मुक़द्दस मकाम मुकम्मल फ़िज़ाई तहफ़्फ़ुज़ का मुस्तहक़ है। अकीदतमंदों का मुअक्किफ़ पुजारी और मजहबी स्कॉलर्स का कहना है कि इस तरह की परवाज़ें मजहबी उसूलों की खिली खिलाफ वर्जी हैं। भक्तों का कहना है कि ये अमल उनके मजहबी जज्बात को मजरूह कर रहा है। अवाम मुतालबा कर रहे हैं कि हुकूमत और एविएशन हुक्काम फौरी कार्रवाई करें और मंदिर के तकद्दुस को बरकरार रखें। हाल ही में पिल्लादो जिला के रीनिटापाड़ला में पेश आए हादसे में जाँ बहक होने वाले चिल संगवा के अफराद खानदान ने वाईएस जगन से मुलाकात की। संगवा की मौत जगन मोहन रेड्डी के दौरे के दौरान पेश आए हादसे में हुई थी। वाईएसआर कांग्रेस पार्टी की जानिब से संगवा के खानदान को पहले ही 10 लाख रुपए की माली इमदाद फराहम की गई है। इस मुलाकात के दौरान जगन मोहन रेड्डी ने अहले खाना से दिली तज़ियत का इजहार किया। उन्होंने यकीन दहानी कराई कि पार्टी हमेशा उनके खानदान के साथ खड़ी रहेगी। जगन ने कहा कि मुतासिरा खानदान को हर मुमकिन मदद फराहम की जाएगी। वाईएसआर कांग्रेस पार्टी ने इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पर इस खानदान की भरपूर हिमायत का ऐलान किया है। हादसे पर अफसोस का इजहार करते हुए जगन ने मरहूम की कुर्बानी को याद रखा जाएगा। कहा पार्टी की जानिब से मजीद मदद और ताउन भी जल्द फराहम किए जाने का इंदिया दिया गया है। मुतासिरा खानदान ने भी वाईएस जगन और पार्टी की हिमायत पर इजहार तशक्कुर किया। आम आदमी पार्टी ने गुजरात जोड़ो अभियान का आगाज किया है। गुजरात के अवाम इस मुहिम में शामिल होने के लिए 9512040404 पर मिस्ड कॉल दे सकते हैं। पार्टी का मकसद है कि इस मुहिम को एक अवामी तहरीक में तब्दील किया जाए। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि हमें गुजरात के 7 करोड़ अवाम को इस मुहिम से जोड़ना है। ये मुहिम रियासत में नई सियासी तब्दीली का आगाज समझी जा रही है। आम आदमी पार्टी का दावा है कि वो गुजरात में साफ सुथरी सियासत लाना चाहती है। मुहिम के जरिए पार्टी रियासत के हर गांव, शहर और तबके तक पहुंचने की कोशिश कर रही है। पार्टी कारकुनान घर घर जाकर आवाम को इस मुहिम से जोड़ रहे हैं। अरविंद केजरीवाल ने आवाम से अपील की है कि वो बढ़ चढ़कर हिस्सा ले। ये अभियान गुजरात की सियासत में आम आदमी की शिराकत को बढ़ाने का जरिया बनेगा। ये नंबर आज से गुजरात जोड़ो अभियान शुरू हो रहा है। ये नंबर 9512040404। इस नंबर पे मिस कॉल करके जुड़ सकते हैं, लेकिन केवल मिस कॉल से नहीं चलेगा। आज से लेके 2027 के चुनाव तक हमें इतनी मेहनत करनी है कि गुजरात की 7 करोड़ जनसंख्या एक एक घर में कम से कम 5 बार हम लोग जाएंगे। 5 बार पूरे गुजरात का राउंड लगाएंगे, तब गुजरात जुड़ेगा। हमें 7 करोड़ लोगों को आम आदमी पार्टी के साथ जोड़ना है। ये हमारा मकसद है। घर घर जाना पड़ेगा, रात दिन मेहनत करनी पड़ेगी। हो सकता है एक टाइम का खाना भी छोड़ना पड़े, खाना मिले ना मिले, रहने को मिले ना मिले। इसको आंदोलन बनाना पड़ेगा, पूरे शिद्दत के साथ लगना पड़ेगा। कम से कम ये हमारा टारगेट है, 5 बार कम से कम हर घर को टच करेंगे हम, चाहे शहर हो चाहे गांव हो। हर घर के अंदर 5 बार जाएंगे हम पूरे गुजरात के अंदर। एक अभी मेरे से पहले मुझे बताया गया कि व्हाट्सएप के बारे में आप लोगों को जानकारी दी गई थी। हमें अपना व्हाट्सएप का पूरा नेटवर्क भी बनाना है। जो आपको जानकारी दी गई थी, आपके पास हमारे लोग आएंगे, व्हाट्सएप पे जोड़ने के लिए, आपसे कुछ करने के लिए बोलेंगे। वो पूरी एक्सरसाइज अपने को करनी है। जितनी तेजी से व्हाट्सएप और जितनी तेजी से सोशल मीडिया बढ़ता जा रहा है, हमें सोशल मीडिया को अपनी ताकत